Hello everyone, welcome to this lecture on GST. In this lecture we will be primarily dealing with four terms. I'm beginning with the first term flashing alongside the screen, that is GST network. Now GST network is a company registered under the Companies Act 2013. The main job of GST network is to provide IT infrastructure for the functioning of GST. जीएसटी में किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना हो तो दे विल टेक हेल्प ऑफ जीएसटी नेटवर्क. वहाँ पर जाकर दे विल लॉग इन द डिटेल्स. दे हैव टू फाइल देयर रिटर्न्स. अगेन गो टू जीएसटी नेटवर्क विच इज़ ऑनलाइन फैसिलिटी. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रिटर्न्स अपनी डिटेल्स वहाँ पे फाइल करिए. इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलना है तो अगेन जीएसटी नेटवर्क का आईटी सिस्टम उस चीज़ को कैलकुलेट करेगा और आपको ड्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट अलॉकेट करेगा. एक तरीके से जीएसटी नेटवर्क इज़ अ कंपनी विच इज़ प्रोवाइडिंग द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द होल फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी. नाउ वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो जीएसटी ऐसा टैक्सेशन सिस्टम नहीं है कि जो पेन और पेपर पे इम्प्लीमेंट हो जाए. देयर हैज़ टू बी लॉट ऑफ बैकडेटेड कैलकुलेशंस कि पिछले ट्रांजैक्शन में कितना टैक्स भरा, उस पर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है. ऑल दीज कैलकुलेशंस इंफॉर्मेशन इज़ मैनेज्ड बाय जीएसटी network. So it is a company which is providing the IT information technology infrastructure for GST. If it is a company, there should also be some owners of the GST network. Yes, there are owners. 24.5% of GST network shares are held by Government of India. Another 24.5% is held by all the state governments combined. कुल मिलाकर currently the scenario is 49% of the shareholding of GST network company is with government, either central or state. तो 51% is held by private enterprises like HDFC Bank, like ICICI, or like some corporations जैसे LIC. लेकिन recently in cabinet decision government has decided that GST network would be made 100% owned by the government. ये फ़िलहाल हुआ नहीं है but over the time ये implement होगा. So GST network is a company which provides IT infrastructure. Currently 49% of the GST network company is held by government and 51% is by different enterprise. Now decision is made कि वो जो 51% की शेयर होल्डिंग प्राइवेट या किसी और एंटरप्राइजेस के पास है वो भी सरकार खरीद के जीएसटी नेटवर्क को 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी बनाएगी. We will read word to word GST network. So GST network is a company registered under Section 8 of the Companies Act 2013. Section 8 says that the company so registered would work on no profit, no loss basis. So GST network जो भी फीस वगैरह चार्ज करता है that is on nominal basis कि वो अपने खर्चे निकाल पाए. That is not for accumulation of profit. So that is what is mentioned in Section 8 of Companies Act. GST network is registered under Section 8 of Companies Act. GST network provides shared IT infrastructure and services to central and state government. CGST, SGST के लिए टैक्स पेयर, आपको टैक्स भरना है तो आप GST network की वेबसाइट पर जाएंगे. और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं GST के इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे GST नेटवर्क और टैक्स पेयर के बीच में देयर इज़ GST सुविधा प्रोवाइडर्स जो कि टैक्स पेयर को GST फाइल करने में मदद करते हैं. उनके लिए भी कौन सा प्लेटफॉर्म है? GST नेटवर्क. वो भी GST नेटवर्क पे जाकर ही अपने सारे फाइलिंग, सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे. तो इट इज़ IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. GST network is a not for profit, non-government, because government की ओनरशिप फिलहाल 49% ही है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक कंपनी को कई प्रकार से रजिस्टर कराया जा सकता है, जैसे पब्लिक लिमिटेड, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी, या फिर प्राइवेट लिमिटेड. तो GST नेटवर्क एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फ़िलहाल रजिस्टर्ड है. It was incorporated on March 28, 2013. Date is important.
प्लीज़ नोट इट। 2013 में बनी थी with a paid up capital of rupees 10 crore. अब paid up capital क्या है, we will see in detail in our share market lectures, but for the time being I will just try to explain it very briefly कि जितने अमाउंट के कंपनी के शेयर्स बेचे जा चुके हैं और उसके बदले पैसा इस कंपनी को मिल गया है इज़ नोन एज पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए के शेयर्स जीएसटी नेटवर्क के बेचे जा चुके हैं और जीएसटी नेटवर्क कंपनी को 10 करोड़ रुपए का पेमेंट मिल चुका है। तो पेड अप कैपिटल इज़ करेंटली रुपीज़ 10 करोड़। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट कौन इसके इक्विटी होल्डर हैं या कौन उसके शेयर होल्डर, इक्विटी मीन्स शेयर, तो कौन इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग 24.5%, एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड ऑल स्टेट्स टुगेदर, या फिर आसान भाषा में ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर आर होल्डिंग 24.5%। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ, we have talked about it, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कुल मिलाकर होल्ड करते हैं 51%। हर किसी का इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग याद नहीं रखना है, कुल मिलाकर कंसेप्ट याद रखना है कि 51% इज हेल्ड बाय सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। This also we have discussed as per latest decision, state and center will hold 50% each in GST network, मतलब भविष्य में GST network would be 100% owned by government, both central and state combined. एक और फैक्ट है, who is the service provider GST network के जो technicalities हैं, that is being managed by Infosys. It is a software company. I hope you are aware about it. मूविंग फॉरवर्ड एक और टर्म डिस्कस करते हैं। तो दिस इज वॉज होल अबाउट जीएसटी नेटवर्क। कुछ फैक्ट हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एक चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज ई वे बिल। सो व्हाट इज ई वे बिल? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। नाउ प्रायर टू जीएसटी Now next we would be discussing about e-way bill, electronic way bill. Prior to GST जो एक सिस्टम था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य के अंदर या एक राज्य के अंदर ही अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं दे यूज़ टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। किस तरीके की? देयर वर चेक पॉइंट्स जहाँ पर इंस्पेक्टर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खड़े रहते थे, वो अपना सब्जेक्टिव असेसमेंट करते थे कि आपकी व्हीकल में तो से 5 लाख वर्थ रुपीज़ गुड्स हैं लेकिन आपने बिल में बताया है मात्र 50,000, वी विल फाइन यू। और मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते थे। इट क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर ट्रांसपोर्टर्स एज वेल एज सप्लायर एज वेल एज रिसीवर। जीएसटी इस चीज़ को आसान बनाने की कोशिश करता है विथ हेल्प ऑफ ई वे बिल मैकेनिज़्म। ई वे बिल मैकेनिज़्म का मुख्य आइडिया ये है कि जब भी एक ट्रांसपोर्टर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करना चाहे तो उससे पूर्व वो ऑनलाइन ई वे बिल जनरेट करेगा जीएसटी पोर्टल या जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से, जिसमें सप्लायर का नाम और जीएसटी नंबर, रिसीवर का नाम, जीएसटी नंबर और एक यूनिक ई वे बिल नंबर अंकित होगा। उसमें यह भी लिखित होगा कि गुड्स कितने वर्थ रुपीज़ के हैं, ताकि हर चेक पॉइंट पर ट्रांसपोर्टर्स आर नॉट हरास्ड, करप्शन, रेड टेपिज़म, लाल फीताशाही, ट्रांसपोर्ट या गुड्स के मूवमेंट के, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में जो लेट लतीफ़ी होती थी इस चेक पॉइंट के कारण वो कम हो सके। सो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ जनरेटिंग ई वे bill. We'll read it point to point. So it is a compliance mechanism जहाँ पर आप नियमों का पालन करवा सकते हैं, whereby
through digital interface, the person causing the movement of goods upload the relevant information prior to commencement of goods and generates a e-way bill on GST portal. इट ऑफर्स द टेक्नोलॉजिकली, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ट्रैक कर रहे हैं इंट्रा स्टेट। आई हैव टोल्ड यू कि एक राज्य के अंदर ही या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर गुड्स का मूवमेंट हो। फिलहाल के लिए जो लिमिट लगाई गई है कि किस केस में ई वे बिल जनरेट करना कंपलसरी होगा, अगर गुड्स 50,000 मूल्य या उससे अधिक के हैं, इन दैट केस और 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स के दायरे से ज़्यादा का मूवमेंट है, मींस 50,000 की कीमत और 10 किलोमीटर से ज़्यादा का मूवमेंट, फिर चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, ई वे बिल इज़ टू बी कंपल्सरीली जनरेटेड। ई वे बिल अपने साथ एक यूनिक बिल आईडी लेकर आएगा और जो भी इंस्पेक्टर्स हैं दे कैन देन विद दैट बिल आईडी ट्रैक द होल सप्लायर रिसीवर। इसका एम क्या है ई वे बिल का, कि गुड्स का मूवमेंट फास्टर हो सके, टर्न अराउंड टाइम ऑफ व्हीकल्स इम्प्रूव हो सके। टर्न अराउंड टाइम मीन्स कि गुड्स अपने सोर्स रीजन से डेस्टिनेशन रीजन में अनलोड होने में कितना वक्त लगता है, ये जितना कम होता है उतना एफिशिएंट आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को मदद मिलेगी क्योंकि ट्रैवल टाइम डिक्रीज़ होगा। एक ट्रक को नाकों पर जितना कम खड़ा रहना पड़े, जितनी कम ब्राइब्स रिश्वत देनी पड़े, जितनी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, उतनी ज़्यादा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी। सो दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड ई वे बिल। Next is workload and administrative responsibilities under GST. अब GST में you know that दो हिस्सों में लग रहा है, CGST और SGST। से there is one organization से Reliance Industries, वहाँ पर it has to be scrutinized कि वो properly GST फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी जाए, केंद्र सरकार के जीएसटी डिपार्टमेंट को या राज्य सरकार के जीएसटी डिपार्टमेंट को? सो द पॉइंट इज दे हैव अंडर जीएसटी काउंसिल रूल्स द डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैज़ बीन मेड इन सच ए मैनर दैट कि जहाँ पर भी 1.5 करोड़ के टर्नओवर, 1.5 करोड़ से कम के टर्नओवर के केसेस होंगे, ऐसे 90% केसेस वुड बी टेकन केयर बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जहाँ पर भी 1.5 करोड़ के टर्नओवर से ज़्यादा अमाउंट होगा, ऐसे केसेस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 50-50। मान लीजिए ऐसी 50 कंपनीज़ हैं, ऐसी 100 कंपनीज़ हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो थ्रू रैंडम लॉटरी मैनर 50 कंपनीज़ का जो स्क्रूटनी है दैट विल बी अलोकेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स जीएसटी ऑफिस, और 50 कंपनीज़ की स्क्रूटनी वुड बी अलोकेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस। मान लीजिए ऐसी 100 कंपनीज़ हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो 90 कंपनीज़ वुड बी अलोकेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड 10 कंपनीज़ वुड बी अलोकेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये अलोकेशन चेरी पिकिंग नहीं हो सकता, ये लॉटरी सिस्टम के थ्रू रैंडमाइज्ड कंप्यूटर जनरेटेड अलोकेशन होगा। सो दिस इज़ द होल आइडिया बिहाइंड वर्कलोड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविजन अंडर GST. Please go through it once. For suppliers having turnover less than 1.5 crores, cases will be distributed in 90:10 between state and center,
and for more than 1.5 crore cases will be distributed in 50:50. Next term we'll be discussing is reverse charge mechanism. Now understand it. Normal charge mechanism GST के केस में क्या होता है? In case of normal charge mechanism, the GST सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो GST सर्विस रिसीवर से GST लेता है और GST ऑफिस में जमा कराता है. मतलब नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारी है GST ऑफिस में GST जमा कराने की. रिवर्स चार्ज में ये चीज़ रिवर्स हो जाती है कि जो सर्विस रिसीवर है उसकी जिम्मेदारी होती है जो भी GST बनता है वो GST ऑफिस में जमा कराए. ऐसी स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? आमतौर पर जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करे. जैसे से ओला का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओला कैब्स का. से ओला कैब्स इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कॉमन मैन. तो जब भी मैं एक ओला कैब बुक करता हूँ मैं ओला की सर्विसेज ले रहा हूँ. ओला ने अगर 100 रुपये का बिल बनाया है तो मान लीजिए कि 18 रुपये दे आर चार्जिंग GST. ये जाएगा मेरी जेब से, लेकिन सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ओला. तो ये 18 रुपये ओला को मैं दूंगा और ये ओला कैब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डिपॉजिट इन GST ऑफिस. ये नॉर्मल चार्ज मैकेनिज़्म है. लेकिन ओला खुद किसी से सर्विस ले रहा है. कौन? ड्राइवर्स से. तो अब यहाँ पर ड्राइवर्स आर द सर्विस प्रोवाइडर एंड ओला इज़ द सर्विस रिसीवर. तो एक नॉर्मल चार्ज मैकेनिज़्म में तो ड्राइवर जो कि सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी GST ऑफिस में GST जमा कराएं, जो कि ड्राइवर तो एकदम अनऑर्गेनाइज्ड है. दे आर नॉट केपेबल इनफ या दे डोंट हैव दिस मच टाइम एंड एनर्जी टू गो टू GST ऑफिस, GST में रजिस्ट्रेशन कराएं, CA रखें और जाके 18 रुपये का GST जमा करें. दिस वोंट वर्क. तो ऐसे केस जहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड का इंटरेक्शन होला, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और ड्राइवर्स आर अनऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ पर आप नॉर्मल मैकेनिज़्म लागू नहीं कर सकते कि ड्राइवर्स जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ओला को उनसे बोला जाए कि जाके GST जमा करिए. यहाँ पर जो मैकेनिज़्म लागू होगा वो रिवर्स चार्ज, कि जो सर्विस रिसीव कर रहा है ड्राइवर्स की, दैट इज़ ओला कैब्स, उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो GST जमा कराए GST ऑफिस में. So this is the idea of reverse charge mechanism. I hope you are able to get it. I'll just read it out. Reverse charge is a mechanism under which recipient of goods and services is liable to pay the tax instead of the provider of goods and services. Under the normal taxation regime, the supplier collects the tax from the buyer and deposits the same to government. But under reverse charge mechanism, liability to pay tax shifts from supplier to the recipient of the services. Remember the Ola example, you would be able to decipher the whole paragraph. Next and last is National Anti-Profiteering Authority.